الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الكافرين والظالمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آپ جیسے بزرگوں کے سامنے لب کشائی کرنا بہت ہی فخر کی بات ہے، اور آپ جیسے بزرگوں کے سامنے لب کشائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا اگر ہم جیسے طالب علم کے پاس مشکل کشا نہ ہوتا. بہت مشکل ہو جاتا اگر ہمارے پاس مشکل کشا نہ ہوتا. شکر ہے اس خالق کائنات کا کہ جس نے ایک نہیں بلکہ 12 مشکل کشا ہمارے ساتھ بھیجے ہیں. ایک نہیں بلکہ 12 مشکل کشا ہمارے ساتھ بھیجے ہیں. شکر ہے اس خالق کائنات کا، مالک ارض و سماوات کا، کہ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو خالق بھی ہے، کہ جس نے ہماری کتاب تقدیر پر یا تو اہل بیت کا غم لکھا یا اہل بیت کی خوشی لکھی، یا تو اہل بیت کا غم لکھا یا اہل بیت کی خوشی لکھی. اور در اہل بیت کائنات میں واحد وہ در ہے کہ جو اس در پر آ جاتا ہے وہ لائق احترام ہو جاتا ہے، جو اس در سے منسوب ہو جاتا ہے وہ لائق احترام ہو جاتا ہے. اور در اہل بیت واحد وہ در ہے کہ جہاں بے زر آئے تو ابو ذر بن جائے، انسان آئے تو مسلمان بن جائے، مسلمان آئے تو سلمان بن جائے، سلمان آئے تو فخر سلیمان بن جائے، سلمان آئے تو فخر سلیمان بن جائے. ہم نے دیکھا کہ جب اس در پر خاک آئی تو وہ خاک نہیں رہی بلکہ خاک شفا بن گئی. سلوات پڑھتا جب اس در پر خاک آئی تو خاک شفا بن گئی. وہ مالک کائنات، وہ مالک ارض و سماوات اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے. انا شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ابتر ہے، بے اولاد ہے. پہلے اس سورہ کا شان نزول سماعت کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ اپنی تقریر کو آگے کروں گا. آس بن وائل لعنتی مکے کی گلیوں میں کفاروں کو پکڑ پکڑ کے گھر جا جا کر نکڑ نکڑ چوراہے چوراہے محلہ محلہ یہ کہتا پھر رہا تھا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا رسول ابتر ہے، معاذ اللہ مسلمانوں کا رسول ابتر ہے، مسلمانوں کا رسول بے اولاد ہے، مسلمانوں کا رسول بے نسل ہے. کافروں سے کہہ رہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ جو مسلمانوں کا رسول ہے، یہ جو دین اسلام پھیلا رہا ہے یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے. تم پریشان نہ ہونا، تم گھبرانا نہیں، تم مضطرب نہیں ہونا، کیونکہ مسلمانوں کا رسول بے اولاد ہے، مسلمانوں کا رسول بے نسل ہے. کس لیے کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ دین اسلام تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا، لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے تھے، محمد اپنے پروگرام کو بڑھا رہے تھے. یہ کافروں سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت
माशाल्लाह बे औलाद है, बेनस्ल है, इसके दीन को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसके कोई औलाद नहीं है, इसके दीन को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। काफिर था, क्या कह रहा था कि इसके कोई औलाद नहीं है, इसका दीन आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसके कोई औलाद। तवज्जो कीजिएगा, अपनी तकरीर का पहला जुमला आपकी आला समाज के हवाले कह रहा हूँ। काफिर था मगर कह रहा था कि इसकी कोई औलाद नहीं है, इसका दीन बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ काफिर था मगर जानता था कि मोहम्मद का दीन बाद मोहम्मद असहाब नहीं फैलाते, औलाद फैलाती है। सलवात पर काफिर था मगर जानता था कि बाद मोहम्मद का दीन असहाब नहीं फैलाते, औलाद फैलाती है। और झलीस अंग्रेजों पत्थरों से न घबराने वाला रसूल जब काफिरों के जबान से, काफिरों के मुंह से अब्तर का ताना सुना तो परेशान हुआ, गमज़दा हुआ, रंजीदा हुआ। उसके महबूब ने अपने हबीब को परेशान देखा, गमज़दा देखा, रंजीदा देखा। फौरन सूरह को नाज़िल किया, ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे कौसर अता किया। मेरे हबीब परेशान न होना, इनसे घबराना नहीं, मैंने तुझे कौसर अता किया। अब आलम इस्लाम में किसी भी फिरके में जाके पूछ लीजिएगा कि कौसर है क्या, हर कोई ये जवाब देगा ये हौज़े कौसर है। ये हौज़े, मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात को आसान कर दूं, कोई अम्मार साहब को प्यास लगी है और पानी मौजूद नहीं है, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए ना। अब कोई शख्स शिद्दत प्यास देकर इनके पास आकर कहे अम्मार साहब परेशान ना होना, घबराना नहीं, पानी नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास किताब तो मौजूद है ना। जरूरत है पानी की, वो कह रहे किताब तो मौजूद है ना। दुनिया का कौन बेअक्ल इंसान ऐसा है जो उसको अक्लमंद कहेगा? कौन दुनिया का बेअक्ल इंसान ऐसा है जो उसको अक्लमंद कहेगा? जरूरत है पानी की, कह रहा है किताब तो मौजूद है ना। तो जो कालिब अक्ल हो, जो कुल्ले अक्ल हो, वो कह रहा है मैंने तुझे कौसर अता किया। रसूल को जरूरत है औलाद की, वो कह रहे हौज़े कौसर दिया। बस सोचने की बात है ना, गौर करने की बात है ना, फिक्र करने की बात है ना। जो कालिब अक्ल हो, जो कुल्ले अक्ल हो, वो कह रहे मैंने तुझे हौज़े कौसर दिया। रसूल को जरूरत है औलाद की, वो कह रहा हमने हौज़े कौसर दिया। हमने उलमा से पूछा कि हौज़े कौसर का मतलब क्या है, तो उलमा ने बताया कौसर का मतलब है ताहिरा, कौसर का मतलब है सिद्दीक़ा, कौसर का मतलब है असरा, कौसर का मतलब है बतूल, कौसर का मतलब है मुहद्दिसा, कौसर का मतलब है शाहिदा, कौसर का मतलब है ताहिरा, कौसर का मतलब है असरा, कौसर का मतलब है बतूल, कौसर का मतलब है सागरा, कौसर का मतलब है शहीदा, कौसर का मतलब है असरा, कौसर का मतलब है बतूल, कौसर का मतलब है ज़हरा, कौसर का मतलब है फातिमा, कौसर का मतलब है नस्ल कसीर। तो अल्लाह ने अपने हबीब से यही तो कहा था, ऐ मेरे हबीब परेशान न होना, मेरे रसूल परेशान न होना, मैं तुझे फातिमा की शक्ल में नस्ल कसीर अता कर रहा हूँ। फातिमा से तेरी औलाद इतनी चलेगी कि पूरी दुनिया में किसी की औलाद हो न हो, तेरी औलाद हर जगह मिलेगी। मेरे हबीब परेशान ना होना, घबराना नहीं, मैंने तेरे कौसर अता किया। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी की औलाद हो ना हो, तेरी औलाद हर जगह मिलेगी। अब उठाइए पूरी दुनिया का नक्शा, देखिए कहाँ पर औलाद फातिमा नहीं है। हमने नक्शा उठाने के बाद नजर की पूरी दुनिया पर, हमें तस्बीह के दानों की तरह चमकते हुए औलाद फातिमा पूरी दुनिया में नजर आई। तस्बीह के दानों की तरह चमकती हुई पूरी कायनात में औलाद फातिमिया नजर आई। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं औलाद फातिमिया के दुश्मन कि जो औलाद फातिमिया को मिटाने पर लगे हैं, औलाद फातिमिया को खत्म करने पर लगे हैं। कहीं मस्जिदों में बमबारी होती है, कभी जुलूसों में शहीद कर दिया जाता है, कभी सरोतर में जुदाई कर दी जाती है, कभी इन्हें जिंदा दफन किया जाता है, कभी बमबारी की जाती है, कभी इन्हें शहीद किया जाता है। लेकिन जब रिसर्च करने वाले ने रिसर्च की कि सबसे बड़ा इज्तिमा किस कौम का है, सबसे बड़ा इज्तिमा किस कौम का है, तवज्जो कीजिएगा, सबसे बड़ा इज्तिमा किस कौम का है। तो रिसर्च करने वाले ने जब रिसर्च की तो सबसे बड़ा इज्तिमा मैदान करबला में और बहीन हुसैनी के मौके पर 7 करोड़ की शक्ल में औलाद फातिमा का नजर आया। सलवात पर मोहम्मद
اتنا مرنے کے بعد بھی, اتنا قتل ہونے کے بعد بھی, اتنا زندہ دفن ہونے کے بعد بھی اولاد فاطمہ ختم ہونے والی نہیں ہے. کسی پوچھنے والے نے سوال کیا, ذرا ہم کو یہ بتائیے, جتنا تم کو مارا جاتا ہے, جتنا تم کو شہید کیا جاتا ہے, جتنا تم پہ بمباری کی جاتی ہے, جتنا تم کو شہید کیا جاتا ہے, جتنا آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں, جتنا آپ کو شہید کیا جاتا ہے, جتنا آپ کو ختم کیا جاتا ہے, کیا سبب ہے, کیا علت ہے کہ تم اولاد فاطمہ ختم ہونے والی نہیں ہو, تم اولاد فاطمہ ختم نہیں ہوتے ہو؟ ہم نے بھی جواب دیا, اگر ہم ابتر کی اولاد میں سے ہوتے تو ختم ہو گئے ہوتے, ہم کوثر کی اولاد میں سے ہیں, قیامت تک رہیں گے. ہم ابتر کی اولاد میں سے ہوتے تو ختم ہو گئے ہوتے, ہم کوثر کی اولاد میں سے ہیں, قیامت تک رہیں گے. تو محبوب نے حبیب سے یہی تو کہا تھا, میرے رسول گھبرانا نہیں, میرے نبی گھبرانا نہیں, میرے نبی پریشان نہ ہونا, میں تیری اس فاطمہ سے تیری نسل کو ایسے قائم کر دوں گا, میں تیری نسل کو ایسے قائم کر دوں گا, اس فاطمہ کے آخری بیٹے کا انعام قائم رکھ دوں گا, اور اس قائم کی حکومت کو قیامت سے ملا دوں گا. صلوات پڑھا عربی ادب کے اعتبار سے مصدر کو کہتے ہیں. لفظ کوثر عربی ادب کے اعتبار سے مصدر کو کہتے ہیں, اور عربی ادب میں مصدر اس کو کہتے ہیں کہ جس سے سب نکلے وہ کسی سے نہ نکلے. کوثر اس کو کہتے ہیں اس سے سب نکلے وہ کسی سے نہ نکلے. تو کوثر سے تو کوئی نہ کوئی نکلا ہوگا. کوثر سے نکلا ہے خیر کثیر. خیر کثیر کا مصدر ہے کوثر, یعنی ہر خیر نکلا ہے کوثر سے, کوثر ہے فاطمہ. ہر خیر نکلا ہے کوثر سے, کوثر ہے فاطمہ. ہر خیر نکلا ہے کوثر سے, کوثر ہے فاطمہ, یعنی ہر خیر ملے گا کوثر سے, کوثر ہے فاطمہ. تو آئیے اب خیر دیکھتے ہیں خیر کیا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں خیر کیا ہے, تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَرِزْقَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, تمہارے رب کا رزق خیر ہے, تمہارے رب کا رزق خیر ہے, یعنی ہر خیر ملے گا کوثر سے, کوثر ہے فاطمہ. قرآن کے اندر تمہارے رب کا رزق خیر ہے. اب جو بھی رزق ہے وہ خیر ہے. رزق کیا ہے؟ دولت رزق ہے, عزت رزق ہے, شہرت رزق ہے, سلطنت رزق ہے, حکومت رزق ہے, تاج حشم رزق ہے, اولاد رزق ہے, عزت رزق ہے, کھانا رزق ہے, روٹی رزق ہے, کپڑے رزق ہے. تو اب جس کو تلاش ہے وہ جائے میرے فاطمہ پر. عزت چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, دولت چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, عزت چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, حکومت چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, روٹی چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, عزت چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, شہرت چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, کھانا چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, روٹی چاہیے جائے میرے فاطمہ پر, روٹی چاہیے جائے میرے فاطمہ پر. اس لیے تاریخ میں ہم نے دیکھا آسمان سے فرشتے روٹیاں لینے رسول کے در پر نہیں گئے, بطول کے در پر گئے.
पूछेगा मशहद में कहाँ गए, मशहद में कहाँ गए, वो आपको बताएगा मशहद में हम रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मशहद में हम रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर गए। जब रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा ना तो दस्तरख़ाने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आएगा। जब दस्तरख़ाने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र आए ना तो उससे पूछिएगा कि आपने दस्तरख़ाने इमाम रज़ा से क्या क्या खाया। उससे पूछिएगा कि आपने दस्तरख़ाने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से क्या क्या खाया। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि रोटी खाई, बोटी खाई, पुलाव खाया, बिरयानी खाया। अगर साहिबे इल्म व फ़हम व शऊर रखता होगा तो वो ये कहेगा कि हमने दस्तरख़ाने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से तबर्रुक खाया। अगर फ़हम और साहिबे इल्म व फ़हम व शऊर रखता होगा तो वो ये कहेगा कि हमने दस्तरख़ाने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से तबर्रुक खाया। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रिज़्क़ इलाही दरे अहले बैत से दूर रहता है, रोटी होता है, बोटी होता है, बिरयानी होता है, पुलाव होता है, लेकिन जब दरे अहले बैत से मंसूब होता है तो रोटी रोटी नहीं रहती, बोटी बोटी नहीं रहती, पुलाव पुलाव नहीं रहता। तो अब ये ना कहना कि दरे फातिमा से फरिश्ते रोटियां लेकर गए, बल्कि ये कहना कि दरे फातिमा से फरिश्ते तबर्रुक लेकर गए। सलवात पढ़ जाए अब ये ना कहना कि दरे फातिमा से फरिश्ते रोटियां लेकर गए, बल्कि तबर्रुक लेकर गए। तबर्रुक कहाँ लेकर गए, कहाँ जाकर तबर्रुक रखा। तमाम उलमा का मुत्तफ़क़ फैसला है तबर्रुक गया जन्नत में। यही है ना, तबर्रुक कहाँ गया, जन्नत में। कहाँ जाकर तबर्रुक रखा, जन्नत में। तबर्रुक उसको कहते हैं जिससे बरकत हासिल हो। तबर्रुक कहाँ गया, तबर्रुक गया जन्नत में। 3 दिन की रोटियां जन्नत में जाने के बाद इतनी बरकत कि जन्नती जाने के बाद हमेशा उन्हीं को खाएगा। 3 दिन की रोटियों में बरकत इतनी कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद हमेशा उनको खाएगा। जन्नत के तारुफ अलग अलग है। किसी ने बोला जन्नत क्या है, जन्नत गिलमान है, जन्नत जहाँ हूरें हैं, जन्नत जहाँ खुद है, जन्नत जहाँ सलसबील है, जन्नत जहाँ नहरें हैं, जन्नत जहाँ हूरें हैं, जन्नत जहाँ गिलमान है। आज जन्नत का एक तारुफ और सुनिएगा, आज जन्नत का तारुफ एक और सुनिएगा। जन्नत वो जगह है जहाँ पर, जन्नत वो जगह है जहाँ पर फातिमा ज़हरा का तबर्रुक हो। जन्नत वो जगह है जहाँ फातिमा ज़हरा का तबर्रुक हो। अब भी समझ में आया हम इमाम बारगाह को जन्नत क्यों कहते हैं, हम अज़ा खाना को जन्नत क्यों कहते हैं, हम फरशादा को जन्नत क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वहाँ भी फातिमा का तबर्रुक है, यहाँ भी फातिमा का तबर्रुक है। सलवात वहाँ भी फातिमा का तबर्रुक है, यहाँ भी फातिमा का तबर्रुक है। अज़मत फातिमा समझिए। कोई आम इंसान का नाम नहीं है बतूल, कोई आम औरत का इंसान औरत का नाम नहीं बतूल। फातिमा उसका नाम है कि जिसका घर का तवाफ आए तकलीफ करती हो। फातिमा उस बीवी का नाम है कि जिसके घर का तवाफ आए तकलीफ करती हो। फातिमा उस बीवी का नाम है कि जिसको आए मुबाइला ढूंढती हुई मैदान मुबाइला तक पहुंच जाए। फातिमा उस बीवी का नाम है कि जिसके घर का दस्तरखान सूरज दहर बन जाए। फातिमा उस बीवी का नाम है कि जिसका बाबा नबियों का सरदार हो। फातिमा उसका नाम है कि जिसकी कनीज कुरान की हम कलाम हो, कुरान की हम जबान हो। फातिमा उस बीवी का नाम है कि जिसके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हो। फातिमा उस बीवी का नाम है कि इमाम जैसा इसका शरीक हयात हो। फातिमा उस बीवी का नाम है कि जिसकी चौखट पे फजीलत कुर्बान होती हो। फातिमा उस बीवी का नाम है कि जिसके दरवाजे पर सितारा सलामी होकर आए। फातिमा उस बीवी का नाम है जो जन्नत की शहजादी है। फातिमा उस बीवी का नाम है जो बतूल है। फातिमा उस बीवी का नाम है जिसका बाबा खातिम रसूल है। फातिमा उस बीवी का नाम है कि जिसके दरवाजे पर शाम सुबह और शाम कायनात का रसूल सलाम करता हो। कायनात का रसूल सलाम करता हो। हमने तारीख में देखा कि कायनात का रसूल मिराज के लिए आसमान पर गया तो नबी की सफे लगी हुई थी। नबूवत इस्लाम में आदम भी खड़े हो गए, नूह भी खड़े हो गए, शील भी
भी खड़े हो गए, यूनुस भी खड़े हो गए, यूसुफ भी खड़े हो गए, इस्माइल भी खड़े हो गए, इस्माइल भी खड़े हो गए, इब्राहिम भी खड़े हो गए, एहतराम में नबूवत में सबके सब नबी खड़े हो गए। आदम ने मुस्तफा का एहतराम किया, यूनुस ने मुस्तफा का एहतराम किया, शीश ने मुस्तफा का एहतराम किया, इब्राहिम ने मुस्तफा का एहतराम किया, इस्माइल ने मोहम्मद का एहतराम किया। तो तारीख में लिखा कि जुमला कहने दीजिए कि 1,24,000 नबी, जिस नबी का एहतराम करे उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, और मोहम्मद अरबी जिसका एहतराम करे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। जिस नबी का एहतराम करें उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, और जिसका मोहम्मद अरबी एहतराम करें उसे ज़हरा कहते हैं। छठे इमाम से किसी ने सवाल किया, उनके साहब ने अबान बिन तगलब, हवाला मेरे पास मौजूद है, अबान बिन तगलब कि मेरे मौला ज़हरा को ज़हरा क्यों कहते हैं, ज़हरा का ज़हरा नाम क्यों रखा गया? इमाम ने फरमाया कि ज़हरा दिन में इमाम अली के सामने 3 तरह का नूर लेकर आती थी। इमाम अली के सामने 3 तरह का नूर आती थी, नूर लेकर आती, उन्होंने 2 को पेश किया, 1 को पेश किया है। 3 तरह का नूर लेकर अली के सामने आती थी। साहब ने सवाल किया, मौला वो 3 नूर कौन से थे? इमाम ने कहा कि पहला नूर वो होता था कि जब सैयदा नमाज सुबह के लिए अपने बिस्तर से उठ के वजू करने के लिए अपने नकाब को उतारती थी। पहला नूर ज़हरा के चेहरे से जब नकाब हटती थी तो ज़हरा के चेहरे से निकलकर मदीने की गलियों में फैल जाया करता था, मदीने की गलियों में फैल जाया करता था। सूरज की पहली किरण मदीने में बाद में आती थी, सैयदा का नूर पहले जाया करता था, सैयदा का नूर पहले जाया करता था। तो जुमला कहने दीजिए ना, कि जुमला कहने दीजिए कि जब तक सैयदा हयात रही तो मदीने वालों ने अर्श का सूरज बाद में देखा, फर्श का सूरज पहले देखा, अर्श का सूरज पहले देखा, फर्श का सूरज बाद में देखा। सलवात पर जज़्मत मोहम्मद। लेकिन जिस सैयदा पे नूर से पूरा मदीना मुनव्वर हो, उसी सैयदा को मुसलमानों ने बड़ी तकलीफें दी, बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ी थी। 18 साल के सिन में फातिमा असा का सहारा लेकर चला करती थी। आपने किसी जवान लड़की को देखा है कि असा का सहारा लेकर चले? लेकिन जिसका एहतराम पूरे मदीने वाले करते हो ना, जिस पर रोज सुबह शाम रसूल सलाम करते हो, वो 18 साल के सिन में असे का सहारा लेकर चल रही है। जरा तसव्वुर कीजिएगा कि मदीने वालों ने कितनी मुसीबतें ढाई होंगी ज़हरा पर। तुम्हारे रसूल की बेटी 18 साल के सिन में इस दुनिया से रुखसत हो गई। तारीख लिखी है कि अपने बाबा के बाद ज़हरा सिर्फ या तो 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही है, 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही है। अगर अभी मोहम्मद का गम ज़हरा भूल न पाई थी कि कुछ मुसलमान लकड़ियां लेकर, आग और लकड़ियां लेकर दरे ज़हरा पे आके खड़े हो गए, दरे ज़हरा पे आके खड़े हो गए और कहा, ऐ ज़हरा, या तो अबुल हसन को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे, या तो हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे या अबुल हसन को हमारे हवाले कर दो। ज़हरा ने इमामत को बचाने के लिए ये कहा कि तुम उस घर को भी आग लगा दोगे जिसमें हसन और हुसैन रहते हैं। बाहर से आवाज आई, हाँ हम उस घर को भी आग लगाते रहेंगे जिनमें हसन और हुसैन रहते हैं। ये सुनना था। ज़हरा दरवाजे के पीछे जाके खड़ी हो गई। किसी जालिम ने दरवाजे में आग लगाई, दरवाजे का जलना था कि ज़हरा ने दोनों हाथों को दरवाजे से रोकना चाहा, दोनों दरवाजों को आग को रोकना चाहा। किसी ने आवाज दी, इस दरवाजे को लात मारो, इस दरवाजे को। हज़रत सुनिएगा, आपके रसूल की बेटी पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। किसी ने कहा इस दरवाजे को आग लगा दो, आग का लगना था। किसी जालिम ने दरवाजे को लात मारी, जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिरा, मोहम्मद की बेटी पे गिरा। तारीख लिखती है कि जलता हुआ
محمد کی بیٹی مدینہ دروازے میں کیل تھی جو فاطمہ کے شکست میں بے بس ہو گئی تھی. بے بس ہونا تھا, کیل کا شکست میں بے بس ہوتا. فاطمہ نے آواز دی, اے اسماء میرا محسن شہید. فاطمہ نے آواز دی, اسماء جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا. اسد ظالموں نے دروازے کو گرایا, گھر کے اندر گھسے. گھر کے اندر گھسنا تھا, علی کو پکڑا. علی کو پکڑنے کے بعد علی جیسے صابر امام کے گلے میں رسی کا بندھن رچتے ہوئے زینب دیکھ رہی ہے. زینب دیکھ رہی ہے, کیا دیکھا؟ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی کو کھینچ کر ظالم لے جا رہے ہیں. جیسے زینب نے یہ دیکھا, زینب نے ایک ہاتھ کو اٹھایا. زینب کا ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھا ہوا تھا. زینب کی پسلیاں شکست ہو گئی تھی. سنیے کا عزادارو, زینب نے ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھا, ایک ہاتھ سے ابو الحسن کے دامن کو پکڑا. کہا میں ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی. یہ سننا تھا کہ کلفت نے تاج جانے کو اٹھایا. تاج جانے کو اٹھانے کے بعد زینب کے ہاتھ پہ وار کیا. زینب کے ہاتھ پہ وار کیا. اللہ جانے زینب نے کیسے کہا ہوگا. زینب کے ایک ہاتھ پہ, ایک ہاتھ سے زینب شل ہو گئی. ایک ہاتھ زینب کا شل ہو گیا. علامہ انصاری ایران میں مجلس کو خطاب کر رہے تھے, شہرہ کی شہادت کی مجلس کی. علامہ انصاری کہتے ہیں کہ میں مجلس کو خطاب کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا, میں نے مصائبوں کو ختم کیا, لیکن ایک جوان ہے جو ابھی تک رو رہا